Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Hope all of you are fine and doing well. Yesterday we started the reading of the play The Tempest. The Tempest has been written by William Shakespeare. It is his last play. Yesterday we have started the play. We read about the Prospero and his daughter Marinda, and about his two servants Caliban and Ariel. Now we read the further Act 2. One day there arose a terrible storm in the sea. As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. "Oh, father," she said, "if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. What a fine ship is there struggling in the cruel waves." The cries of the drowning sailors seemed to knock down against my heart. "Don't be afraid," replied Prospero. "Not a single person shall perish. As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter." Who do not know who you are now. For the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life 12 years ago. He said, "I was Duke of Milan. Knowledge was my chief aim in life. Wealth and worldly possessions hardly mattered to me. Leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whose loyalty I never doubted, I devoted all my time to secret studies. Meanwhile, he grew greedy for power and possessions. He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the King of Naples. One dark night, their soldiers took me out of my palace with you crying in my arms. They don't dare to kill us openly, so they put us into an old and damaged ship that could hardly float, and left us to perish at sea. But there was a kind old lord named Gonzalo. He was loyal to me at heart and was not in favor of Antonio's plot. He secretly stored the ship with fresh water, food, and clothes, and my precious books, which I valued more than my dukedom. Drowned by favorable winds, we floated to this lonely island. "But what is your reason for raising this tempest?" asked Miranda, who was still thinking of the drowning sailors. "Fortune has now begun to favor me," replied Prospero. "The tempest has, in a strange manner, brought all my enemies to this island. They are in the ship, you see. For the present it is enough for you to know that much." Then Prospero touched Miranda gently with his magic wand, and she fell asleep. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक दिन समंदर में बहुत ज़्यादा स्टॉर्म तूफान उठता है. एस्मेरिंडा लुक्ड आउट, जब वो बाहर देखती है तो वो पाती है कि एक ब्यूटीफुल शिप समंदर के बीचों बीच इसमें इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म वो जूझ रहा है. "ओ फादर," वो अपने डैड को कहती हैं, प्रॉस्पेरो को, "इफ़ यू हैव रेज्ड दिस टेम्पेस्ट, भाई अगर आपने अपनी पावर मैजिकल पावर से ये टेम्पेस्ट ये तूफ़ान उठाया है तो इसको ख़त्म करो, क्योंकि वहाँ पे आप देखो एक ब्यूटीफुल शिप इसमें स्ट्रगल जूझ रहा है इस तूफ़ान की लहरों में. तो आप इसको, और जो इसमें सेलर्स हैं शिप में, उनकी चीखें मेरे हार्ट को टच करें और मैं डर रही हूँ." "डोंट बी अफ्रेड," रिप्लाइड प्रॉस्पेरो. इसको बोलता है प्रॉस्पेरो, "आप मत घबराओ. नॉट अ सिंगल, कोई भी पर्सन यहाँ पे इस शिप में जो भी ये सेलर्स हैं, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, न वो डूब जाएंगे." और वो उसको कहता है, "आई हैव रेज्ड द स्टॉर्म फॉर योर सेक," आपकी बहबूदी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए मैंने ये स्टॉर्म क्रिएट की है. तो उसको कहता है, "आप नहीं जानते हु यू आर, आप कौन हो." तो पहली बार उसको वो बोलता है प्रॉस्पेरो अपनी ज़िंदगी की कहानी के 12 साल पहले. मैं क्या था? प्रॉस्पेरो कहता है, "आई वॉज डूक ऑफ मिलान," यानी कि किंग ऑफ मिलान. नॉलेज, और मेरा मकसद था, चीफ एम इन लाइफ क्या था? नॉलेज गेन करना. मेरे लिए वेल्थ और वर्ल्डली पोसेशन, पैसा दौलत, ये कुछ मायने नहीं रखता था. मैंने सारा जो मैनेजमेंट, सारी जो अपने ये
किंगडम के जो भी मामलात थे मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैंने अपने भाई को दिए थे, वो सारा पावर्स वो देखने के लिए, जिसका नाम था एंटोनियो। और कहता है मैंने कभी भी उसकी वफ़ादारी, हुज लॉयल्टी और नेवर डाउटेड, मैंने कभी भी उसकी वफ़ादारी पे शक नहीं किया, और मैं सिर्फ मसरूफ़ था अपनी सीक्रेट स्टडीज़ में। कौन सी सीक्रेट स्टडीज़ में? मैजिकल स्टडीज़ में। मीनवाइल ही ग्रेव, लेकिन वक्त के साथ उसमें लालच आ गया। किसके लिए? पावर, वो बनना चाहता था किंग, और पसंद वो चाहता था ऐशो दौलत। तो इसके लिए उसने मेरे मिनिस्टर्स को रिश्वत दी, और उन्होंने प्लॉटेड अगेंस्ट मी, और उन्होंने क्या की? कॉन्स्पायरेसी, मेरे खिलाफ की साजिश की, रची। किसके साथ? विद माई एनिमी। इसका एनिमी कौन होता है प्रॉस्पेरो का? किंग ऑफ नेपल्स। वन डार्क नाइट, कहता है एक दिन क्या हुआ, रात को, वन डार्क नाइट, एक रात को उन्होंने उसके सोल्जर्स ने मुझे अपने ही पैलेस से बाहर निकाला, और अब मेरे आर्मस में थे। उनमें इतनी देर, डू नॉट डेयर टू किल अस ओपनली, वो डियर मीन्स ब्रेव, दे आर नॉट सो ब्रेव, वो हमें वहाँ पे मारते। तो उन्होंने हमें क्या किया, किस में डाला? टूटे फूटे शिप में, ओल्ड पुराना शिप था, डैमेज्ड शिप था, तो वो हार्डली फ्लोट कर रहा सकता था, पानी पे तैर सकता था, ताकि हम उसी में मर जाए, ताकि किसी को भी पता न चले। लेकिन एक वफादार था लॉर्ड, जिसका नाम था गैंज़ेलो, जो प्रॉस्पेरो का लॉयल होता है, वफादार, उसने क्या किया? was not in favor of Antonio's plot, वो एंटोनियो की इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? सीक्रेटली स्टोर, उसने चुपके से शिप में क्या रखे? फ्रेश वाटर रखा, फूड रखा, क्लोथ्स रखे, और कुछ मैजिकल प्रीशियस बुक्स प्रॉस्पेरो की रखी, ठीक है, जिनको वो प्रेफर करता था अपनी ड्यूकडम से ज़्यादा, यानी कि मैजिकल बुक्स। ड्राइवन बाय और फेवरेबल विंड्स की वजह से गॉड ने चाहा तो हम यहाँ पे पहुँचे, इस आइलैंड पे, लोनली आइलैंड पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। बट व्हाट इज़ योर रीज़न? वो मिरिंडा को कहती है, लेकिन आपने टेम्पेस्ट्री क्यों क्रिएट किया, ये क्यों तूफान उठाया? क्योंकि ये अभी भी किन के बारे में सोच रही थी? जो इस शिप में सेलर से जो जूझ रहा था इस तूफान में। अब प्रॉस्पेरो जवाब देता है, इस वक्त किस्मत मेरे फेवर में है, कुदरत मेरे फेवर में है, उसने मेरे सभी एनिमीज़ को यहाँ पे ला खड़ा किया है, उनको मेरे इस आइलैंड पे लाया है। दे आर इन द शिप, और वो इसी शिप में है, सवार है, और यहाँ फॉर द प्रेजेंट, इस वक्त आपकी इतना जानना काफ़ी है। तो फिर वो टच करता है मिरिंडा को अपनी मैजिकल वैन से, और उसको नींद आ जाती है। ये था एक्ट 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।